Welcome students in science class. In previous video we described about the respiration types of respirations. We discussed there is two type of respiration, aerobic and anaerobic, and what is the product form in the aerobic anaerobic process. Everyone know about them? So all of you write in comment box what is the product of anaerobic respiration and what is the product is form of aerobic respirations. You write in comment box. Okay. Today we start a very important topic, that is the respiration in plant. Why we take this topic? Because some student, that is the misconception that during the nights plants they cannot respire, but respiration that is occur in 24 hour in all living organism, if they are plant, animals or human beings. Okay, so today we start the topic, that is the respiration in plant. Plants are made of the cells, just like animal body that is also made of the different type of cells. So plant body that is also made of the cell, and they respire like the animals in order to release energy. Just like in case of animal we discuss about them in aerobic process, that is the release of energy, breaking down of food, that is release of energy. And even they have cellular respiration. The respiration occur where? That is occur inside the cells. So this is known as the cellular respiration. That is clear. Plants synthesize sugars. Plant, in case of respiration process, that is the same another process that is occur is the formation of food material. This is commonly known as the photosynthesis process. Okay. So in case of plant synthesize sugar, this is used in the respiration to produce energy. वही जो शुगर फॉर्म हुआ, मतलब जो स्टार्च फूड प्लांट फॉर्म किए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, that is the breakdown in the presence of oxygen. This glucose molecule that is breakdown in the presence of oxygen release the energy, and this energy that is used for the different activity that is occur inside the plant. The glucose molecules breaks down into the presence of oxygen to release energy in step by reaction. इसमें step by reaction में ये release होती है energy. That is clear. The net results of cellular respiration is that carbon dioxide and water are formed during this process, accompanied by the release of energy. ठीक है, तो aerobic respiration या cellular respiration में क्या होता है? That is the similar process which occur in case of aerobic respiration, where in the presence of oxygen the food molecules means glucose is breakdown, and that is formation of product carbon dioxide and water molecules, and that is release a very large amount of energy, means 38 ATP are released. That is clear, means 678 kilocalories energy are released from one glucose molecules. Clear? So how can you say that in case of respiration and photosynthesis that is occur in same process? Just like you see here, diagram में आपको clear है? You see here. The first diagrams that is showing the photosynthesis, another that is showing the respiration. तो photosynthesis क्या है? During the day times, in the presence of sunlight, light energy that is trapped by the chlorophyll which are present in the leaf, carbon dioxide that is absorbed through the leaf which are present in the atmosphere,
mineral and water that is absorbed through the roots and through the leaf that is contain the chlorophyll, they make the food material that is formation of sugar. क्या फॉर्म हो रहा है? sugar. You know what is the reaction of formation of photosynthesis? क्या होता है? 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनता है प्लांट का? C6H12O6 ओके, प्लस 6O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलीज होता है एज वेल एज द वाटर. क्लियर? तो ये आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है. 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द लीफ थ्रू द क्लोरोफिल. From atmosphere 12 water molecules that is absorbed through the roots, minerals. ठीक है? In the presence of chlorophyll that is formation of glucose molecule C6H12O6. This is the glucose. And byproduct रूप में 6 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं. 6O2 are released. ये ऑक्सीजन रिलीज होती है. And that is also water that is released. Very less amount of water that is also released. 6H2O are released. तो ये फोटोसिंथेसिस में होता है. तो फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन क्या हो गया? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर. ठीक है, दैट इज क्लियर. ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रूप में निकल रहा है एज वेल एज द शुगर फॉर्म. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन जस्ट लाइक दैट इज गिवन इज द हियर इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड. ठीक है, ऑक्सीजन दैट इंटेक्स इनसाइड द प्लांट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इसके लिए जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? शुगर से. जो शुगर फॉर्म हुआ है लीफ में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ब्रेकिंग डाउन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. यू नो अबाउट द व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन? पता है इसमें क्या होता है? जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. ठीक है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से C6H12O6. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी. ठीक, यही फॉर्म होता है. क्लियर? एक क्लियर है रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है और किसका ब्रेकिंग डाउन हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जो शुगर है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है. तो दैट इज द गिवन द रिएक्शंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज गिवन हियर. वाइस वर्सा दिया हुआ है आपका. दिस इज गिवन द फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज गिवन द रेस्पिरेशंस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस दैट इज अगर ओनली द डे टाइम. तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जो शुगर फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कंज्यूम थ्रू द प्लांट्स. डे टाइम एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट के नीचे गर्म प्रतीत नहीं होता. रीज़न क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बाय द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे आर कंज्यूम. दैट इज द इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट ड्यूरिंग द नाइट दैट इज गिवन हियर क्लियर, दैट इज द ऑक्सीजन दैट इज इंटेक्ट. यहाँ पर नाइट पर दिखाया गया है क्लियरली कि ड्यूरिंग द नाइट प्लांट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन. ड्यूरिंग द डे भी करते हैं लेकिन आपको आवाज़ नहीं होता. ड्यूरिंग द नाइट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, किस लिए? रेस्पिरेशन में शुगर जो मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के कारण ही
रात्रि को प्लांट के नीचे गर्म प्रतीत होता है, गर्म होता है, इसलिए कहा जाता है कि रात्रि को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। दैट इज़ क्लियर। क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप होने से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और वही डे टाइम होता है, सनलाइट होता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं। क्लियर? ओके। You see here the respiration in plant, that is the that is photosynthesis respiration, overall result condition, कंडीशन दिया है, ओवरऑल रिजल्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है पूरा आपको यहाँ रिएक्शन के थ्रू दिखाया गया है, चार्ट के थ्रू। जैसे पहला है डार्क कंडीशन, मतलब नाइट में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक। रात्रि में क्या होता है, डार्क में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस लेकिन रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता है। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन टेकन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, ये रेस्पिरेशन का मेन कंडीशन है। दूसरा है डीम लाइट, ठीक। लाइट यदि बहुत कम हो तो फोटोसिंथेसिस रेट इक्वल होगा किसके, रेस्पिरेशन रेट के। फोटोसिंथेसिस रेट इज इक्वल टू द रेस्पिरेशन। देयर इज नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो फूड फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एब्जॉर्ब थ्रू द प्लांट्स। क्लियर? एंड ब्राइट लाइट, यदि लाइट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस रेट इज़ ग्रेटर देन द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो लाइट यदि ज़्यादा है, ब्राइटली लाइट है, तो फोटोसिंथेसिस वो रैपिडली होता है या फास्टली होता है अदर देन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से ज़्यादा फास्टली या ज़्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन एंड ऑक्सीजन गिवन आउट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में कंज्यूम होगा, और जिसके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्लांट दे मेक देयर फूड, फूड का फॉर्मेशन होगा, और फूड फॉर्मेशन होता है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन। दैट इज़ क्लियर। आपको ये चार्ट क्लियर हो गया? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, हाउ कैन द रेस्पिरेशन टेक्स इन द प्लांट, बाय प्रोडक्ट की जो बात कर रहे थे, देखिए यहाँ हम रिएक्शन के थ्रू बता दे रहे हैं आपको। ग्लूकोज या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। सेल में होता है प्लांट को, उसको सेलुलर कहते हैं। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। हाउ कैन द रेस्पिरेशन अकर इन केस ऑफ प्लांट, थ्रू द स्टोमेटा। ओके, बिकॉज इन केस ऑफ प्लांट देर इज नो स्पेसिफिक आर्गन फॉर ब्रीदिंग, इसमें कोई स्पेसिफिक आर्गन तो है नहीं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडीज लंग्स है ब्रीदिंग के लिए, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट ब्रीदिंग ऑर्गन्स इज एब्सेंट। दे यूटिलाइज द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सिंपली प्रोसेस होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस? The movement of substance from high concentration to the low concentration, इस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन्स, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसा है जिधर हाई कंसनट्रेट हो, जिधर ज़्यादा अमाउंट होता है, और जिधर कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है, इनसाइड प्लांट के लीफ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द कहाँ पर, लीफ में। एंड ऑक्सीजन जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, तो बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इनसाइड द लीफ इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। क्लियर? It is done with the help of small opening on the surface of leaf, that is occur in the surface of leaf. This is commonly known as the stomata. इसको स्टोमेटा कहते हैं, और सिंगुलरली दिस इज नोन एज द स्ट्रोमा।
इसको सिंपल में बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, सिंगल एग। द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड रिमेन क्लोज एट द नाइट। जो स्टोमेटा है देखिए दो तरह के यहाँ दिखाया गया है, एक ओपन दिख रहा है और एक क्लोज दिख रहा है। ओपन जो होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस रैपिडली होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है, तो क्लोज स्टोमेटा भी क्या है, क्लोज्ड होते हैं। दैट इज क्लियर। क्लियर हुआ है। द स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं। लॉस ऑफ व्हाट इज द there is one term, that is the losses of water from aerial part of plant is known as the transpirations. There is one process, that is the transpiration. एक क्वेश्चन आता है, what is the transpiration? Transpiration means losses of water from aerial part of the plant is known as transpiration. मतलब रूट के छोड़ के प्लांट को ऊपरी पार्ट से किसी पार्ट से वाटर का लॉस होना, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। Beside the stomata, some parts of plant like wood branches that are made of the surface have pores known as the lenticel. Stomata that is present in the leaf, except the stomata, the other part of the plant just like a wood, जो woody branches हैं, ओके, स्टेम है, उसके सरफेस पे स्मॉल पोर्स होता है, दिस इज नोन एज द लेंटिसेल, that help the lying living cells to exchange gases to respire. इसके थ्रू भी रिस्पायर के थ्रू जो गैसेस है उसको रिलीज किया जाता है। द सेल्स इन द रूट्स आल्सो हैव बीन ऑक्सीजन टू द सरफेस, ठीक है। जो ऑक्सीजन है सरफेस पर सॉइल में जो प्रेजेंट है उसको प्लांट के जो रूट है दैट इज आल्सो एब्जॉर्ब देम। They take in air from the air space between soil particles, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो सॉइल पार्टिकल उसके बीच में जो एयर प्रेजेंट होता है उससे ये एब्जॉर्ब करते हैं। ए प्लांट डाइज इफ ओवर वाटर्ड, यदि प्लांट जो प्रेजेंट है और पूरा उसका रूट मतलब स्टीम ऑफ वर्ड ऑफ स्टीम पूरा कवर्ड है, जैसे आपका वीट हो, ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट रिस्पायर नहीं कर पाएगा। प्लांट रिस्पायर नहीं करेगा तो जो प्लांट हो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। ए प्लांट डाइड इज ओवर वाटर्ड, ज़्यादा वाटर यदि कई दिन तक रह जाता है प्लांट क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। दिस हैपन बिकॉज द एयर स्पेस ऑफ सॉइल गेट ऑक्यूपाइड बाय द वाटर, जो सॉइल के बीच में एयर स्पेस था वो वाटर से वो फिल्ड हो जाता है। एंड सो द प्लांट रूट्स आर नॉट एबल टू रिस्पायर, और उसमें वाटर भर जाने के कारण प्लांट के रूट जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण प्लांट का रूट डेड हो गया। प्लांट का रूट डेड हो गया मतलब पूरे प्लांट आपका डेड हो गया। दैट इज क्लियर। एनी कन्फ्यूजन्स? ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक एंड आइकन बेल को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक्स।